Hi dear students, here Professor Anil Gorakh Darekar. Today we are going to discuss important instructions and tips for MHT CET examination 2022. Dear students, you know that your CET examination going to start from 5th of August and it will end on 18th of August. So PCM group students will get one session in between 5th of August to 10th of August, and PCB group students will get one session for examination from 11th of August to 18th of August. Now, what is the important thing that you have to do today itself? That is what? To download your admit card, that is what? Hall ticket. So you can download your hall ticket by taking help of the website simply mahacet.org. If you select this website, then once you click on it, you will get first page, and on first page you can see that welcome to State Common Entrance Test. Once you click on it, second page will open. You can see second page. On second page you can observe two groups, PCB groups and PCM group. If your group is a PCB, you simply click on the link, that is a view admit card. Click on it, download the admit card and take out the print. So taking a hard copy, that is a printout, is compulsory, mandatory for examination. Once you take printout, that printout look like this one. So you can see first page, for example, name of the candidate ABC, roll number, for example, then date of birth. So keep in mind your login ID is what? Roll number, and your password for examination is your date of birth. So dear students, here on hall ticket, what important thing that you have to observe, you have to note. So if you see the first picture, then you can observe that you have to paste your passport size color photograph. Remember, colored photograph. And after pasting colored photograph, you have to do a cross sign on it. Now how to paste photograph and how to do cross sign, you can you can see the second page. Right, on second page I shown one example, that is the photograph of student and cross sign on it. Now this hall ticket you have to carry for examination. So carrying hall ticket is compulsory for examination. Now what things you need to know, need to remember from the hall ticket? That is the first one, date of examination. यानी कि आपकी एग्जाम कौन से डेट को है वो आपको पता चलेगा हॉल टिकट से. दूसरी बात, वो जो पर्टिकुलर डेट है उस डेट को आपको मॉर्निंग सेशन मिला है या आफ्टरनून सेशन मिला है. अगर आपका सेशन मॉर्निंग है तो आपको कंपलसरी जो कॉलेज है, जो सेंटर है एग्जाम का, वहां पे 7:30 to 8 AM के बीच में आपको वहां पे रीच होना ही है. राइट, वहां पे मॉर्निंग सेशन पे आपका एग्जाम टाइम होगा 9 AM to 12 noon, तो एग्जाम 3 hours का होगा. अगर आपका सेशन आफ्टरनून में है तो हॉल टिकट पे दिखेगा कि आपको रिपोर्ट करना है एग्जामिनेशन सेंटर पे 12:30 को. तो डियर स्टूडेंट्स, आप 12:30 से लेके 1 PM तक वहां पे रीच आपको करना ही है. तो टाइमिंग आफ्टरनून सेशन में आपका रहेगा 2 PM to 5 PM, दैट इज व्हाट 3 hours. राइट, थर्ड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, हॉल टिकट से आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम कौन से सेंटर पे है, कॉलेज का नाम क्या है, वो कॉलेज कौन से सिटी में है, यानी कि वो एग्जामिनेशन सेंटर का पूरा एड्रेस हॉल टिकट के ऊपर दिया रहेगा, वो आपको केयरफुली देखना है. राइट, सो दीज आर दी पॉइंट्स दैट यू शुड note carefully from the hall ticket. Now let us move forward.
अभी एग्जाम को जाते समय हॉल टिकट के साथ साथ आपको कंपलसरी एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है। आईडी प्रूफ आधार कार्ड या पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, चारों में से कौन सा भी एक, लेकिन ओरिजिनल आपको आपके साथ लेके जाना पड़ेगा। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देख रहे हो आपका एग्जाम 5 अगस्त से चालू हो रहा है और अभी का इन्वायरमेंट अगर आप देखोगे तो रेनी सीजन है, रेनफॉल हो रहा है, बहुत ट्रैफिक रोड पे आपको दिखेगा, ट्रैवलिंग के बहुत सारे इश्यूज रहेंगे। तो अगर एग्जामिनेशन सेंटर आपके घर से बहुत दूर है तो डियर स्टूडेंट्स कोशिश करो कि एग्जाम का जो डेट है उस डेट के एक दिन पहले ही आप उस सिटी में पहुंच जाओ, ताकि आप एग्जाम के दिन जो टाइम आपको दिया है, जो रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया है, उस रिपोर्टिंग टाइम पे आप वहां पे आसानी से पहुंच सकते हो। क्योंकि मॉर्निंग सेशन जो है वो गेट क्लोज हो जाएगा 8:30 AM को। 8:30 AM के बाद आपको कौन से भी हालत में सेंटर, एग्जाम का जो सेंटर है उसके अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। अगर मॉर्निंग सेशन है तो 8:30 के पहले आपको कौन से भी हालत में वहां पे पहुंचना है। अगर आपका सेशन आफ्टरनून पे है तो आपको कौन से भी हालत में जो एग्जामिनेशन सेंटर है गेट के अंदर आपको 1:30 से पहले पहुंचना है। अगर आपने 8:30 और 1:30 जो है वो टाइम अगर जो फॉलो है वो अगर नहीं किया तो आपको कौन से भी कंडीशन पे, कौन से भी सिचुएशन पे आपको अंदर छोड़ा नहीं जाएगा। सो प्लीज स्टिक टू द टाइम, राइट। अगर दूर रहते हो तो एक दिन पहले ही आप उस सिटी में पहुंच जाओ। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज व्हाट क्वेश्चन पेपर पैटर्न। अभी क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपका क्या है, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका ग्रुप PCM है, दैट इज अ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो डियर स्टूडेंट्स 2 पेपर रहेंगे। पेपर 1 फिजिक्स केमिस्ट्री का होगा, जैसे ही पेपर 1 खत्म होगा पेपर 2 चालू होगा, दैट इज व्हाट मैथमेटिक्स। अभी जो पेपर 1 है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री 11th स्टैंडर्ड से 10 क्वेश्चन आएंगे, 12th स्टैंडर्ड से 40 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि फिजिक्स के टोटल 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के टोटल 50 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। तो यहां पे आपको दिखेगा कि फिजिक्स को 50 मार्क्स है, केमिस्ट्री को 50 मार्क्स है। ये 50 + 50 यानी कि 100 मार्क्स जो है पेपर 1 के आपको 90 मिनट्स में उसे खत्म करना है। क्योंकि 90 मिनट्स जैसे ही खत्म हो गए पेपर 1 जो है वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा और पेपर 2 यानी कि मैथमेटिक्स जो है वो पेपर 2 का एग्जाम एक्टिव हो जाएगा। वहां पे मैथमेटिक्स में 11th स्टैंडर्ड से 10 क्वेश्चन है, 12th स्टैंडर्ड से 40 क्वेश्चन है। सो 10 + 40 50 क्वेश्चन है, लेकिन अभी यहां पे हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स है, यानी कि 50 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स हो गए 100। तो 100 मार्क्स के लिए अगेन आपको 90 मिनट्स मिलेंगे और उस 90 मिनट्स में आपको पेपर 2 यानी कि मैथमेटिक्स खत्म करना है। तो अगर आप ओवरलुक करें इसके ऊपर तो PCM जो है टोटल क्वेश्चंस है 150, टोटल मार्क्स है 200 और आपको जो टोटल टाइम मिलेगा वो मिलेगा 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स। पेपर 1 90 मिनट्स, पेपर 2 90 मिनट्स। अगर मान के चलो आपका अगर ग्रुप PCB है यानी कि मैथमेटिक्स नहीं है, बायोलॉजी है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर 1 जो है उसका पैटर्न सेम रहेगा। 10th 11th जो है 11th स्टैंडर्ड जो है 10 क्वेश्चन रहेंगे, 12th के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री जो है 50 मार्क्स के क्वेश्चंस वहां पे रहेंगे, टाइमिंग 90 मिनट्स। दूसरा पेपर जो है वो बायोलॉजी रहेगा, वहां पे बॉटनी एंड जूलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। 11th स्टैंडर्ड बॉटनी के ऊपर 10 क्वेश्चन, 11th स्टैंडर्ड जूलॉजी के ऊपर 10 क्वेश्चन और 12th स्टैंडर्ड में से 40 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि टोटल कितने क्वेश्चंस है 100 क्वेश्चंस बायोलॉजी के ऊपर है। हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स दिया गया है, तो टोटल मार्क हो गए 100। अगेन टाइमिंग इसको है 90 मिनट्स। अगर टोटल क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे तो 200 क्वेश्चंस है, टोटल मार्क्स भी 200 है और जो टोटल टाइम है वो 180 मिनट्स है, दैट इज व्हाट 3 आवर्स। सो दिस इज अबाउट व्हाट PCM एंड PCB ग्रुप क्वेश्चन पेपर पैटर्न। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप एग्जाम सेंटर पे रिपोर्ट करोगे
आपको वहां पे आपका सिटिंग अरेंजमेंट दिखाया जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से आपको कंप्यूटर लैब में जाके बैठना है। आपके सामने डेस्कटॉप कंप्यूटर होगा, वहां पे टीचर रहेंगे, सुपरवाइजर रहेंगे, वो आपको पूरा गाइड करेंगे कि लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे डालना है, लॉगिन कैसा करना है। जैसे ही आपका एग्जाम का टाइम चालू हुआ, यानी कि मान के चलो आपका मॉर्निंग सेशन पे एग्जाम है और 9 o'clock आपका एग्जाम चालू होगा, आप 8:30 को रिपोर्ट करोगे सेंटर पे, राइट। जो बाकी फॉर्मेलिटीज है एग्जामिनेशन सेंटर पे वो हमें पहले खत्म करना पड़ता है, राइट। और उसके बाद आपका जो एक्चुअल पेपर है वो 9 o'clock स्टार्ट हो जाएगा। अभी 9 o'clock जैसे ही आप लॉग इन करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपके सामने दिख रहा है वो स्क्रीन आपको दिखेगा, वो स्क्रीन आपको दिखेगा। उस स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि आपका फोटोग्राफ आपको दिखेगा, आपका नाम दिखेगा, राइट। वो आपको देखना है कि आपका ही फोटोग्राफ है, आपका ही नाम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ही फोटो होना चाहिए, आपका ही नाम होना चाहिए। फोटो के जस्ट बगल में आप देख सकते हो कि पहला सेशन जो है करंट सेशन वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का रहेगा कंपलसरी। और एग्जैक्टली आपका जो फोटो है उसके नीचे टाइमिंग रिफ्लेक्ट करेगा। आपको मैंने बोला है फोटो के ऊपर आप देखो, मैंने पेपर 1 फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री लिखा हुआ है। टाइमिंग 1.5 आवर रहेगा, यानी कि 90 मिनट्स रहेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपका जो रिमेनिंग टाइमिंग है वो टाइम काउंट डाउन चालू हो जाएगा। वो फोटो के नीचे आपको दिखेगा कि कितने मिनट्स चले गए हैं, यानी कि कितने मिनट्स बाकी है वो आपको पता चलेगा। यहां पे आप देख सकते हो पेपर 1 यानी कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो आपको अगर फिजिक्स बहुत अच्छा जाता है, अच्छी आपकी पढ़ाई हुई है, तो आप फिजिक्स सिलेक्ट करो। अगर आपको लगता है नहीं नहीं मेरा केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, तो आपको करना क्या है, केमिस्ट्री सिलेक्ट करना है। तो यहां पे आपको चॉइस है पेपर 1 में, या तो आप केमिस्ट्री पहले सॉल्व करो या तो आप फिजिक्स पहले सॉल्व करो, आपकी चॉइस, राइट। क्योंकि वहां पे आपको ऑप्शन दिया है, राइट। तो मान के चलो आपने क्या किया है, सबसे पहले फिजिक्स सिलेक्ट किया है, तो इस तरीके से क्वेश्चन वहां पे रिफ्लेक्ट होगा। उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस उसके नीचे दिखेंगे, एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन दिखेगा और उसके 4 ऑप्शंस दिखेंगे। जो ऑप्शन आपको सही लगे वो आपको सिलेक्ट करना है। और आप नीचे देख सकते हो ग्रीन कलर में नेक्स्ट जो आइकॉन है उसके ऊपर क्लिक करना है, तो आप क्या हो जाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाओगे, राइट। तो ये करना क्या है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है वो 90 मिनट्स में ही आपको खत्म करना है। जैसे ही 90 मिनट्स हो जाएंगे ये फिजिक्स केमिस्ट्री का जो पेपर है ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और 90 मिनट्स के बाद दूसरा पेपर ओपन होगा, वो है मैथमेटिक्स। अगेन वहां पे आपका टाइम काउंटडाउन चालू हो जाएगा। 90 मिनट्स आपको है, यहां पे क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होगा, उसके 4 ऑप्शंस रिफ्लेक्ट होंगे। आपको जो ऑप्शन सही लगे वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो उसे आप क्या कर सकते हो, बुक मार्क करके छोड़ दे सकते हो, या तो आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ले सकते हो। अभी यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि अरे ये 100 के ऊपर क्वेश्चंस के नंबर दिख रहे हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन रहेगा पहला वो 101 रहेगा, और मैथमेटिक्स का आखिरी क्वेश्चन जो रहेगा वो 150 रहेगा, क्योंकि पीसीएम के लिए टोटल 150 क्वेश्चंस हैं। तो आखिरी के 50 क्वेश्चंस जो है वो मैथमेटिक्स के रहेंगे। अभी मैं बात करूं टाइम मैनेजमेंट की, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टिप्स जो है वो आपको फॉलो करना है माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने मेरा नेट एग्जाम क्रैक किया है, माय ऑल इंडिया रैंक जो है वो 51 आया था, और मैंने यही ट्रिक वहां पे लगाई थी, राइट। जो अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप टाइम इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो, और इफेक्टिवली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस है उसके आंसर सिलेक्ट करके प्रॉपर टाइम पे आपका पेपर सबमिट हो सकता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, 3 राउंड्स लगाने हैं। पहला राउंड रहेगा क्विक आंसर राउंड, यानी कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, आपने देखा कि आपको उसका करेक्ट आंसर तुरंत क्लिक हो रहा है, विद इन अ फ्यू सेकंड उसका आंसर आपको
क्लिक हो रहा है, तो राइट उसको मैंने बोला है क्विक आंसर राउंड। तो वो क्वेश्चंस जो है वो आपको सबसे पहले सॉल्व करने हैं। मान के चलो आपको फिजिक्स सिंपल जाता है, आपने फिजिक्स सिलेक्ट किया, तो फिजिक्स में आपको पहला राउंड लगाना है क्विक आंसर राउंड। पहला क्वेश्चन आपने देखा फिजिक्स का, राइट, जैसे ही देखा आपको क्लिक हुआ कि अरे यार हाँ ए ही करेक्ट आंसर है, उसे आपने क्लिक किया, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, सेकंड क्वेश्चन आया। जैसे ही सेकंड क्वेश्चन आया आपको लग रहा है कि अरे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, उसको मुझे टाइम देना पड़ेगा, तो वहां पे आपको उसे टाइम नहीं देना है, उसे छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, राइट, अगर आपको देखते ही पता चल रहा है कि अरे यार हाँ बी ही सही आंसर है, तो उसे सिलेक्ट करो और आगे जाओ। यानी कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसे स्किप करना है, पहला राउंड लगाना है क्विक आंसर राउंड। तो क्विक आंसर राउंड आपका जो है वो पहले हो जाएगा। वो राउंड होने के बाद आपको दूसरा राउंड लगाना है, दैट इज व्हाट डिफिकल्ट क्वेश्चन राउंड। यानी कि वो क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको ये समझ में आ रहा है अरे यार अगर मैंने थोड़ा सा अगर इसको टाइम दिया, थोड़ा सा अगर मैं रफ वर्क करूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करूं, तो इसका आंसर मैं पक्का करेक्ट ढूंढ सकता हूं, राइट। तो ये जो रहेगा वो राउंड सेकंड रहेगा। सारे सिंपल क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद ये आप दोबारा शुरुआत से चालू करोगे कि मेरे कौन से क्वेश्चंस छूट गए हैं, कौन से क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं। तो वो क्वेश्चंस देखते समय आपको लगेगा कि इसको मैंने टाइम दिया, थोड़ा मैंने वर्कआउट किया, तो उसका आंसर मुझे आ रहा है। अभी इस टाइम पे क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे वो पूरा आउट ऑफ प्रिपरेशन रहेंगे, आपको लग रहा है कि अरे यार ये क्वेश्चंस तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, उसको छोड़ना है, उसको पूरा छोड़ना है, उसे अटेम्प्ट नहीं करना है, उसे स्किप करना है। पहले सेकंड राउंड के डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टाइम देके उसे सॉल्व करो, राइट। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपका राउंड 1 खत्म हुआ, इजी क्वेश्चंस, राइट, उसके बाद डिफिकल्ट क्वेश्चंस, और आखिरी का जो राउंड है, राइट, उसको मैंने नाम दिया है जय माता दी राउंड। यानी कि वो क्वेश्चन कंप्लीटली अननोन है, आपको उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, आउट ऑफ प्रिपरेशन है, तो उस टाइम पे आपको करना क्या है, आपकी मर्जी, जो ऑप्शन आपको लगे वो आप उसे सिलेक्ट करके छोड़ दे दो, राइट। अभी ये 3 राउंड का फायदा क्या होगा, पहले 90 मिनट्स जो है आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के है, तो आपने पहला राउंड लगाया क्विक आंसर राउंड, तो आपके जो आसान क्वेश्चन है, जो परफेक्ट आपको आंसर्स आ रहे हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। यानी कि आपका 50% काम खत्म हुआ। जो 50% काम बाकी है उसमें से 30 क्वेश्चंस जो है वो डिफिकल्ट रहते हैं, थोड़ा बहुत टाइम देने के बाद वो 30 डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। और जो 20 क्वेश्चंस बाकी है, मान के चलो कि उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, अगर टाइम भी अगर आउट होता है, टाइम खत्म होता है, तो भी आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आपने इजी क्वेश्चंस और डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, राइट। जो आखिरी का राउंड था, यानी कि जय माता दी राउंड, उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं था, राइट। वो रैंडमली एट द एंड जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, कौन से भी ऑप्शन सिलेक्ट करके सबमिट करना है। तो डियर टू स्टूडेंट्स, ये जो 3 राउंड्स है आप फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए लगाओगे, वही राउंड्स आप मैथमेटिक्स के लिए लगाओगे, ऑल राइट। तो इस तरीके से आपको जो आपका सीईटी का पेपर है, पीसीएम रहेगा, पीसीबी रहेगा, वो आपको अटेम्प्ट करना है, आंसर करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एट द एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज अ पेनफुल स्टोरी, क्योंकि जिसको सक्सेस मिलता है वो विदाउट पेन नहीं मिलता, राइट। उसकी जो स्टोरी रहती है वो पेनफुल रहती है। एंड हमेशा याद में रखो, एवरी पेनफुल स्टोरी हैज अ सक्सेसफुल एंडिंग, राइट। तो उसका जो एंड होता है वो सक्सेस में ही होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट द पेन एंड गेट रेडी फॉर सक्सेस। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सीईटी एग्जामिनेशन। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम देखेंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो कैसे सिलेक्ट करना है। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, विश यू ऑल द बेस्ट। सो इफ यू लाइक, then please subscribe my channel, like and share. Thank you.